Good morning, students. As we move forward with our next term, so in the next term, our first chapter will be sets. Chapter 6, sets. Now, we have already done sets in 6th class also. What is this set? Set, it is a well-defined collection of object. Any collection, मतलब आपको पता होनी चाहिए वो that, what is that fixed collection? That is known as set. If I am taking an example that A is any object that is a collection of vowels. So what is this? A is a collection of vowels. As we already know, what are vowels? A, E, I, O, U. You already know about the vowels. So A, E, I, O, U is a vowel and we will represent it in a curly bracket. We will write the set in a curly bracket and we denote it with the capital letter. If it is a collection of vowel and it is given that A is a collection of vowel, so you will write it A is equals to, in curly brackets you will take it A, comma, E, comma, I, comma, O, comma, U. You will, these alphabets which we have written, these vowel which we have written is known as elements. It is an element of a set. That can be a number also and that can be the alphabets also. But for representing the set or for denoting the set, we will always use the capital letters. A capital, X capital, P capital, whatever it is given. And then in the curly bracket which you will write it, that is known as element. If we take one more second example and it is given that B is all odd numbers between 1 to 10. कौन सी collection है? Odd numbers की. So, and which set is this? B. So, B will be equals to, in curly bracket, you will start writing the elements. कौन कौन से odd numbers होंगे 1 to 10 के बीच में? 3, 5, 7, 9. 1 is also an odd number. 1, 3, 5, 7, 9. So, these will be your set of collection of odd numbers which we represent in the curly bracket. So from this example you will understand what is a set. It is a well defined collection of objects. जो भी आपको चीज है उसको आपको पता नहीं चाहिए कौन सी चीज है. Now if we will see the question number 1 in exercise 6A, it is given which of the following are the collections are sets. ये जो आपको collections given है आपको बताने की which is a set or which is not a set. First it is given all books in your school library. आपकी स्कूल लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हैं इसकी कलेक्शन आपको पता चल सकती है ना, बिकॉज देयर इज अ रिकॉर्ड इन द बुक्स, सो यू विल टेक इट एज अ सेट. दिस इज अ सेट. ऑल रेड फ्लावर्स इन अ पार्क. अगर आप पार्क में जाते हैं आपको रेड फ्लावर्स दिखते हैं तो आप काउंट कर सकते हो कि वो कितने रेड फ्लावर्स हैं. सो दिस इज ऑल्सो अ सेट. ऑल गुड प्लेयर्स इन योर स्कूल. नाउ इफ विद एनी persons it is given adjectives, कोई भी adjectives दिया होता है, good हो गया, tall हो गया, better हो गया, best हो गया, like this. When the adjective is given with the any of your person or any of the noun or pronoun, then it is not a set. How? If we say all good players in a school, आपके स्कूल में प्लेयर्स हो सकते हैं, बॉयज प्लेयर्स हो सकती हैं, गर्ल्स प्लेयर्स हो सकती हैं, पर कौन सा गुड है कौन से बेटर है ये तो आप काउंट नहीं कर सकते ना. सो दिस इज नॉट अ सेट. दैट थिंग विच कैन बी काउंटेड, जो आप काउंट कर सकते हो, दैट विल बी अ सेट. ऑल फिक्शन मूवी, कोई भी एक्शन मूवीज हो, आप कलेक्शन देखोगे, आप गूगल में डालोगे कि व्हाट आर द एक्शन मूवीज, नंबर्स कितने हैं, तो वो आपको पता चल सकती है कि कितनी एक्शन मूवीज या फिक्शंस मूवीज हैं. सो दिस इज ऑल्सो अ सेट. लाइक दिस यू विल फाइंड आउट दैट इफ इट इज अ सेट और नॉट अ सेट. अगर आप यहां पे देखो ऑल इवन नंबर्स ग्रेटर देन 100, अब आपको पता है कि इवन नंबर्स ग्रेटर देन 100 कौन से हैं, तो वो आप काउंट कर सकते हो. सो दिस विल बी अ सेट. इवन नंबर्स ले लिया, जैसे 100 के बाद कौन सा इवन नंबर, 102, देन 104 डैश डैश. सो इट कैन बी काउंटेड. इट इज अ कलेक्शन ऑफ अ सेट. सो वी कैन से दैट दिस इज अ कलेक्शन ऑफ अ set.
ऑल इंटीजर्स लेस देन -5, -5 से लेस इंटीजर्स भी आपको पता है, -6, -7, -8 सो ऑन. देयर इज अ collection of integers less than -1. So this is also a set. अगर आपको यहां पे दिया all person of repute in your colony, अब persons reputed मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि ये reputed है या नहीं है, वो तो आप नहीं फाइंड कर सकते ना. इट इज एन एडजेक्टिव की reputed आपको फाइंड करना है. सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ सेट. रेस्ट ऑफ द पार्ट यू कैन ऑल्सो सी इफ इट इज अ सेट और नॉट. नाउ सेट, अगर आपको ये बताया था आपको मैंने एग्जाम्पल कि ये सेट्स के एग्जाम्पल होते हैं एंड वी डिनोटेड विद द कैपिटल लेटर्स, और सेट को कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं. अगर मैंने कहा ये वाले नंबर्स में इफ 5 बिलोंग्स टू सेट बी और नॉट, अगर 5 का है कि आपको पूछा है बिलोंग्स टू बी और नॉट, तो ये सिंबल होता है कि बिलोंग्स का क्या सिंबल होगा कि B5 बिलोंग्स का सेट होता है, ये स्मॉल ई ऐसे डालते हैं, और बी कि 5 बिलोंग्स टू बी. अगर मैं कहूं 8 आपका इस सेट का बी का है एलिमेंट? नहीं है, बी का एलिमेंट नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, स्मॉल ई लेकर क्रॉस करके लिख दोगे 8 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी और 8 डजंट बिलोंग्स टू सेट बी. तो बिलोंग्स को लिखने के लिए ये आपका सिंबल है, और नॉट बिलोंग्स के लिए ई को आपने कट कर देना. नाउ दिस सेट इज डन विद द 3 मेथड्स. 3 मेथड्स होते हैं इनके. फर्स्ट वन इज डिस्क्रिप्टिव मेथड. Descriptive method you will take it. Second is roster form. And third one is set builder form. We will study about these methods in this exercise. Now, first, what is descriptive method? अगर आपको मैंने ये अभी आपको सेट कहा था कि A is a collection of vowels, तो आप डिस्क्रिप्टिव मेथड में आप कैसे लिखोगे, आपने सिंपली लिख देना A कलेक्शन ऑफ वॉवल्स, मतलब आपने इसको डिस्क्राइब कर दिया. कलेक्शन ऑफ वॉवल्स आपने वर्ड्स में लिख दिया, सो दिस इज अ डिस्क्रिप्टिव मेथड. इसी को ही आपने रोस्टर फॉर्म में लिखना. अगर आपने इसी को रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, A इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स में जो आपके एलिमेंट्स हैं, वॉवल्स जो बिलोंग करते हैं, वो आपने यहाँ पे लिख देना. This is known as roster form when you will write the elements in the curly bracket. And third, अगर इसी को आपने set builder form में लिखना है, how you will write it? See it carefully. Set builder form में आप कैसे लिखोगे, curly bracket में ही आपने लिखना है A is equals to X such that X, ये आपने पहले लिखना है. X कॉलन लगाया, कॉलन का मतलब होता है such that X बिलोंग्स टू, मतलब क्या आपके हैं ये, X बिलोंग्स टू, और यू कैन राइट इट X सच दैट X इज अ कलेक्शन ऑफ वॉवल्स. तो जो भी आपकी चीज X सच दैट X से रिप्रेजेंट होती है, दैट इज अ फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर. इसको आप कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, जो आपके X सच दैट X से स्टार्ट होगी, और आगे सारा डिस्क्रिप्टिव में लिखना आपने. सो दीज आर द 3 फॉर्म्स इन विच वी हैव टू फाइंड द सेट डिस्क्रिप्टिव मेथड, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म. डिस्क्रिप्टिव मेथड व्हेन यू विल राइट इट इन द डिटेल, रोस्टर फॉर्म व्हेन यू राइट ओनली एलिमेंट्स इन द कर्ली ब्रैकेट, एंड सेट बिल्डर फॉर्म व्हेन यू राइट इन द कर्ली ब्रैकेट्स. कैसे स्टार्ट करोगे, X such that X and whatever which is asked. So this is a set builder form. Relating to these forms, we will start our question number 2, in which it is written in descriptive method. Descriptive method में आपको लिखा हुआ है, and we have to write each of the following sets in roster form. ये कौन सी method में लिखा हुआ है, descriptive, and you have to write it in roster form. So, if I'm taking the first part, A equals to set of all prime numbers between 70 and 100. तो A तो आपका सेट है, कर्ली ब्रैकेट्स में आपने वो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि आपके प्राइम नंबर है 70 और 100 के बीच में. सो प्राइम नंबर्स आर द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 और नंबर इटसेल्फ. तो कौन कौन से प्राइम नंबर्स होंगे इसके बीच में,
71, 73, 79, 83, 89, 97। बिटवीन 100 तक लिखना था ना आपने, 70 से 100 तक प्राइम नंबर्स, तो आपने वो नंबर्स लिख दिए। अगर आपने कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट नहीं किया और हर एलिमेंट्स के बीच में कॉमा नहीं लगाया तो सेट विल बी रॉन्ग। तो आपने सारे एलिमेंट्स लिखने हैं सेपरेटिंग विद द कॉमर्स, एंड यू हैव टू ऑल्सो डिनोट द नेम ऑफ द सेट, यानी कि सेट का नेम क्या था, ए। सिमिलरली इफ आई एम टेकिंग द थर्ड part it is given C, set of all integers lying between -7 and 2। इंटीजर्स कौन से होते हैं, जो नेगेटिव और पॉजिटिव भी होते हैं और जीरो भी हैं। तो आपने वो सारे एलिमेंट्स लिखने जो -7 और 2 के बीच में। तो कौन सा नेम ऑफ द सेट क्या है, C। C इक्वल्स टू -7 के बाद कौन सा आपका इंटीजर आएगा, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0 एंड 1। ये आपके सारे एलिमेंट्स हैं, 2 से नीचे और -7 से बड़े, वो सारे एलिमेंट्स आपने यहाँ पे लिख दिए। सिमिलरली इफ आई एम टेकिंग फिफ्थ पार्ट, इन फिफ्थ पार्ट इट इज गिवन सेट ई आपका सेट है, और वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जो भी लेटर्स हैं वो आपने लिखने हैं, पर कोई भी लेटर जो रिपीट हो रहा है उसको आपने ओनली 1 टाइम लिखना है। यू हैव टू राइट इट ओनली 1 टाइम। सो व्हाट आर द एलिमेंट्स, कौन कौन से होंगे, अगर कैपिटल में लिखा तो कैपिटल में लिखोगे M, A, T, H, E। अब M दोबारा रिपीट हो रहा है तो आपने नहीं लिखना, क्योंकि M ऑलरेडी वी हैव टेकन इट। देन A ऑल्सो इज रिपीटेड, तो A भी आप नहीं लोगे। देन इट कम्स T भी आपका रिपीट हो रहा है, वो भी नहीं लोगे, तो क्या लोगे अब, I, C, S। तो जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं इस लेटर्स में वो आपने नहीं लेने, ओनली यू विल टेक द एलिमेंट्स विच आर नॉट रिपीटेड। नाउ सिमिलरली सेवन पार्ट इट इज गिवन G, और यू कैन टेक 6 पार्ट। 6 पार्ट में आपको गिवन है, सेट नेम है F, सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स इन द वर्ड सेकेंडरी। सेकेंडरी में आपके जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं, अब ये कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, व्हाट इज कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स। जो लेटर्स वॉवल्स में होते हैं जैसे A, E, I, O, U, ये तो वॉवल्स हैं, तो बाकी लेटर्स क्या होंगे, कॉन्सोनेंट्स। तो आपने इसमें लिखने हैं कॉन्सोनेंट्स, वॉवल्स नहीं लेने आपने। तो कौन कौन से कॉन्सोनेंट्स होंगे इसमें, S, देन E is a vowel, you will not take it, C, N, D, R, Y। मतलब सेकेंडरी लेटर्स में वॉवल्स को छोड़ के जो भी लेटर्स हैं दैट इज अ कॉन्सोनेंट। तो आपने ये कलेक्शन में लिख दिया। लाइक दिस यू विल डू दिस क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 you will do it in the book only, but question number 2 you will do it in the notebooks. Now come to question number 3. Now in third question it is given, write each of the following sets in roster form and also write the cardinal number of each. आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है और कार्डिनल नंबर भी लिखना है। ये आपकी रोस्टर फॉर्म होती है। अब रोस्टर फॉर्म आपको यहाँ पे कौन सी फॉर्म दी हुई है, एक्स सच दैट एक्स से दी हुई है, इट इज अ सेट बिल्डर फॉर्म। आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। पहले डिस्क्रिप्टिव मेथड था, उसको रोस्टर फॉर्म में लिखा, अब सेट बिल्डर फॉर्म को आपने रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सीधा फर्स्ट आपका कौन सा सेट है, ए सेट, इक्वल्स टू एक्स इज एन इंटीजर्स, और वो इंटीजर कहां से लाई कर रहे हैं, -3 और 4 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो -3 और 4 के बीच में जितने भी इंटीजर्स हैं यू विल राइट इट, व्हाट आर दे, -2, -1, 0, 1, 2, 3। दिस इज अ set of an integers which lie between -3 and 4. Second thing they have asked, आपने यहाँ पे 4 भी लेना है, क्योंकि 4 के नीचे आपको क्या साइन दिया हुआ है, इक्वल का, तो आपने यहाँ पे 4 भी इंक्लूड करोगे। अगर साइन के नीचे इक्वल का साइन, इट मीन्स 4 इज ऑल्सो इंक्लूडेड। नाउ यू हैव टू राइट द कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर आपके क्या होते हैं, कार्डिनल नंबर मीन्स जितने भी एलिमेंट्स इस सेट में होते हैं उसको काउंट करके लिखना है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, स्मॉल एन
फिर आपका ब्रैकेट, और ब्रैकेट में नेम ऑफ द सेट, सेट का नेम क्या है ए। तो कितने एलिमेंट्स हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7, सो कार्डिनल नंबर विल बी 7। तो कार्डिनल नंबर क्या होता है, जितने एलिमेंट्स आपके सेट्स में बिलोंग करते हैं वो सबको काउंट करके लिखना है। और रिप्रेजेंट कैसे करते हो, स्मॉल एन स्मॉल ब्रैकेट, और उसमें एक स्मॉल ब्रैकेट में क्या लिखोगे, नेम ऑफ द सेट। इफ आई एम टेकिंग द सेकेंड पार्ट, अब सेकेंड पार्ट जरा ध्यान से समझना, b इज इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर। x आपका किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और आपको कंडीशन भी दी हुई है कि 3x माइनस 6 इज लेस देन 9, मतलब आपको x वही नेचुरल नंबर लेना है जो 9 से कम हो, जब इसको सॉल्व करें वो 9 से कम हो। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नाउ इफ वी पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन दिस इक्वेशन 3x माइनस 6, तो आप 1 पुट करते हो x को तो ये आता है 3 ब्रैकेट 1 माइनस 6, 3 माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू -3, बट इट इज लेस देन 9। अब ये इक्वेशन में 1 पुट करके ये लेस देन 9 आ गया, इट मीन्स b का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा दैट विल बी 1। देन यू विल पुट द वैल्यू ऑफ x एज 2, इसी में आपने 2 रखनी है वैल्यू, 3 2 माइनस 6, 3 2 जा 6, 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 0 भी 9 से क्या है, छोटा, तो आपका 2 भी क्या हो गया, एक आपका एलिमेंट। सिमिलरली यू विल पुट x, यहां पे आपने रखा x1, यहां पे रखा आपने x2, अब रखोगे आप x3, 3 3 माइनस 6, 3 3 जा 9, 9 माइनस 6 इज 3 विच इज ऑल्सो स्मॉलर देन 9, तो आपका एक एलिमेंट क्या हो गया, 3। Similarly, you will take the next 4. X is equals to 4. 3 bracket 4 minus 6. This will be equals to 12 minus 6, which is equals to 6. अभी भी आपका ये क्या है, 9 से छोटा है ये एलिमेंट, तो आपके x की वैल्यू यहाँ पे 4 भी आएगी। Next, you will put x equals to 5. 3 5 minus 6. 15 minus 6 that is 9. तो 9 ये तो इक्वल हो गए, इट मीन्स आपका ये 5 एलिमेंट x का नहीं आएगा। हमने वही x के एलिमेंट्स लेने हैं, x के वही नेचुरल नंबर्स लेने हैं जो 9 से छोटे होंगे आफ्टर सॉल्विंग इट। सो दीज आर द एलिमेंट। तो इनका कार्डिनल नंबर क्या होगा, कार्डिनल नंबर ऑफ b विल बी इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 4, तो कार्डिनल नंबर हो गया 4। नाउ इफ आई बी टेकिंग द 6 पार्ट, देखो 6 पार्ट कौन सा सेट है, f, और f के एलिमेंट्स क्या कहा है उन्होंने, x इज अ लेटर इन द वर्ड कॉमन। कॉमन में आपके जितने लेटर्स हैं वो आपने लेने हैं, सेम रिपीट नहीं होना चाहिए, C O M N। तो ये कितना कार्डिनल नंबर होगा, इसका कार्डिनल नंबर f विल बी इक्वल्स टू 4। एक और देखो 9th पार्ट, इन 9th पार्ट इट इज गिवन सेट इज J आपका सेट है, पर उन्होंने क्या कहा है, x सच दैट x इक्वल्स टू 1 अपॉन n। x आपने अब क्या लेना है, 1 अपॉन n, और जो n है वो क्या है, नेचुरल नंबर्स जो आपके कहां से आ रहे हैं, 4 और 10 के बीच में, विच लाई बिटवीन 4 एंड 10। तो कौन कौन से n होंगे, x इक्वल्स टू 1 अपॉन n, तो क्या आएगा, 4 के बाद क्या आता है 5, यहां पे n की वैल्यू आपने क्या रखनी है, 5 6 7 8 9, क्योंकि उन्होंने कहा है x जो है वो क्या है आपका 1 अपॉन n, और n क्या है, नेचुरल नंबर्स, और वो भी नेचुरल नंबर्स कौन से आपके, विच लाई बिटवीन 4 एंड 10, दैट इज 5 6 7 8 9। तो आप कैसे लिखोगे, 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 6, 1 अपॉन 7, 1 अपॉन 8, 1 अपॉन 9, दिस विल बी योर एलिमेंट्स। तो कार्डिनल नंबर ऑफ j क्या होगा आपका, व्हाट विल बी द कार्डिनल नंबर ऑफ j, 1 2 3 4 5, सो कार्डिनल नंबर विल बी 5। तो जो भी आपको अगर सेट में कुछ भी आपको डिनोट किया है, जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन दी थी और यहाँ पे आपको एक और इक्वेशन फ्रैक्शन में लिखना है, और वो भी नंबर्स वही लेने हैं जो 4 और 10 के बीच में है, सो लाइक दिस यू विल राइट इट। सो फॉर टुडे
यू विल कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2 and 3 इन योर नोटबुक्स. कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन में, वी कैन टेक इट इन द वर्चुअल क्लास. So be attentive in the virtual class also. Complete this. Thank you.